Hello everyone, welcome back learners to this Vedic Manthan platform of BNSS series. So today we are beginning with the second lecture of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. In the first lecture we discussed about the historical aspect, the jurisprudential aspect of Bharatiya Nagarik, this criminal procedure code, how it began with, what nature of society prevailed with the inception of the society, with the beginning of the society. We also saw the absence of sovereignty, absence of the concept of sovereignty. Then how did the feel of the need of sovereign arose? How the concept of sovereignty come into existence? We saw all these things. We also saw the journey of old criminal procedure code to new criminal procedure code. We also saw the inherent defect which prevailed in 1898 code. The inherent defects in 1898 code, which was the main inherent defect was that it was not in consonance of Constitution of India with regards to Article 50, which dictates the watertight compartment, the separation between executive and judiciary. 1898 कोड में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें जो एग्जीक्यूटिव का रोल था और जुडिशरी का रोल था वो मिक्स्ड था. इट वाज basically the same person used to perform both roles of executive and judiciary, which should not be as per the Constitution of India. So it was not in consonance, it was not in harmony with Article 50. So that was the main reason why the 1973 code had to be rewritten. Moreover, 1898 code was not imbibing the concept of natural justice. Obviously, it is but obvious that it was written by Britishers. So why would they be interested in inculcating? Why would they be interested in touching the concept of natural justice? It also avoided the socialist notion, which today we have in BNSS and erstwhile CRPC 1973. We have the concept of legal aid. We have the concept. Now, after the 1973 code CRPC, we moved to this new Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita BNSS 2023. So let us see the structural changes. Basically, in CRPC, we had in 1973 code we had 484 sections, 2 schedules, 56 forms, 37 chapters. This code existed and ran for almost 50 years. It ran until 2023. When BNSS came, we got to see 531 sections and 39 chapters, 2 schedules, and 58 forms. सो बेसिकली दिस इज़ द वी कैन से जो मोटा मोटा चेंजेस हैं वो यही है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे ही देखने को मिलते हैं. इफ़ इट हैपन टू टॉक अबाउट दी BNSS falls in the third list of the seventh schedule. We know that seventh schedule of a Constitution of India deals with the separation of power with regards to subjects matter. Seventh schedule deals with the subject matter which can be dealt by the union, the central government. Second list deals with the subject matter which can be dealt by the state legislatures. And the third is the concurrent list. Concurrent list composes all those subject matters which can be dealt by both union and the state legislatures. So BNSS criminal procedure code falls in the third list of the seventh schedule, that is concurrent list. Now, if I moving ahead, if I happen to talk about the guiding principles of procedural law, so no doubt the guiding principle, the first and the foremost guiding principle would be the fair trial, the need of the fair trial. We ought to have the fair trial, which is the sine qua non, which is the most necessary thing as far as if we have to look Article 21.
As per Article 21, it is said that it's a part of fundamental right, as it is claimed that we ought to have the fair trial. We cannot skip the part of natural justice. Second is that it is always in the interest of the state that there must be an end to litigation. मतलब कि जितने पेंडिंग केसेस आज हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, उसी को दिमाग में रखते हुए ये कहा गया है कि स्टेट के इंटरेस्ट में ये बातें हैं कि जितने पेंडिंग केसेस हैं, जितने लिटिगेशंस हैं, उनको जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए. तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द कॉमन jurisprudence दैट there must be an end to litigation. So first I said about the fair trial. Second is there must be an end to litigation. It is always in the interest of the state. How can we? This is the guiding principle. तो क्या ऐसे कुछ प्रोविजंस हमारे सीपीसी या बीएनएसएस में हैं जो कि इसको कंसिडर करके हुए लिखे गए हैं? जैसे कि सीपीसी में इफ़ वी टॉक अबाउट कि देयर इज़ अ प्रोविजन विच से दैट the court cannot adjourn the case. The court cannot adjourn the case more than 3 times. मीन्स मैक्सिमम एडजर्नमेंट 3 टाइम्स मिल सकते हैं किसी भी पार्टी को इन सीपीसी. ऐसे ही बीएनएसएस में इट इज़ मैंडेटेड दैट डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, एवरी डे हियरिंग होनी चाहिए. इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोविजंस लिखे गए हैं कि नो एडजर्नमेंट कैन बी गिवन आफ्टर 3 टाइम्स. मीन्स मैक्सिमम 3 times adjournment is allowed. In BNSS, we have to hear the case on daily basis. So in interview, basically it is a part of interview questions that it is said that how can we improve the case. Suppose interviewer asked the interviewee that as it is a very famous question that if you become a judge, what would you like to change as per your own capability? So it will be a very safer side to answer that I'll follow the guiding principle that there must be an end to litigation, which is in the state's interest. So the interviewer asked that how will you implement? So you can answer very very beautifully that in CPC as it is guided, I'll follow the same thing that I'll not adjourn the case more than 3 times. As far as criminal procedure is concerned, I'll try to hear the case on daily basis. Now, third guiding principle that as we know that India is a country which is independent, is free. We have also imbibed the concept of right to equality. When I talk about the right to equality, we also we are also considering the people who are poor, who are we are also considering the people who are poor and hardly can access the justice system. So because of their poverty, it is the duty of the state, it is the duty of the justice system that they should not be deprived of justice. That is why we have brought the concept of free legal aid. Now, this is the one aspect. The another aspect, if we look at Article 20 of Constitution, which is we will say that dedicated to criminal procedure, which talks about the ex post facto law, double jeopardy, and self-incrimination. So, now, moreover, as we know that unlike in CPC, unlike in CPC vis-a-vis defendant, in criminal procedure code, in criminal procedure, the accused is presumed to be innocent until proven guilty. Why? Because of the fact that here, like in CPC, in which the defendant can be asked to pay compensation at most, but in criminal procedure, the accused has to undergo the punishment. That punishment can be the smallest punishment in terms of fine. That punishment can also be the death penalty. So we cannot afford this much leniency with regards to accused in criminal procedure that we cannot take any presumption.
in favor of accused. So in CRPC, in BNSS, we have to take the presumption that the accused is innocent until the prosecution proves the accused to be guilty. So the procedure must be balanced. Now, there is one more line which we often talk about. The line which is given by Sir William Blackstone. It is also called Blackstone's ratio. It is also called Blackstone's ratio. बेसिकली ब्लैक स्टोन रेशियो किसको बोलते हैं? जो एक लाइन हम लोग बोलते हैं कि लेट 100 accused go free rather than one innocent suffer. So this line was given by Sir William Blackstone, and this line prominently is also called Blackstone's ratio. In this, we say that now this is the concept of victimology. Basically, victimology is the newer. I'll say that it is comparatively new as far as the concept is concerned. That it is included in uh, criminal procedure. That what about if I follow that let 100 accused go free rather than one innocent suffer? So what do I mean by this? क्या मैं अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, if I say that let 100 accused go free rather than one innocent suffer, that is good, that is acceptable, that innocent should not be roped in. But what should be about the 100 victims? अगर मैं 100 accused को सेट फ्री कर दे रहा हूँ बस इस रीजन की वजह से कि किसी एक इनोसेंट को सफ़र ना हो, एक इनोसेंट हार्म ना हो, उसकी वजह से 100 accused को अगर मैं सेट फ्री कर दे रहा हूँ, तो उस 100 accused का जो 100 victims हैं, उन 100 victims का क्या? Are we thinking about those 100 victims? So now the concept of victimology has come. It is in vogue for last 2 to 3 decades. एक ये इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है विक्टिमोलॉजी. तो इसके अपोज में अब विक्टिमोलॉजी जो BNSS है हमारा, विक्टिमोलॉजी पे काफ़ी ध्यान दिया. वी विल रीड अबाउट प्रोविजंस which highlights the concept, which highlights the importance of victimology, which talks about victims independence, which talks about the victim's independency, which talks about the rights of victim. So very beautifully, BNSS has imbibed the concept of victimology. We will see in further classes. Now, I think we are moving ahead. So let me tell you that when we study criminal procedure, तो दोनों इसमें दो लोगों के साथ डील किया गया है. एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. When we talk about executive magistrate and when we talk about judicial magistrate, they both are separate watertight compartment as far as Article 50 is concerned. So keeping the view of Article 50 in our mind, we have to say that executive magistrate का काम तब तक होगा जब तक judicial magistrate का start ना हो function. तो keeping in the view of Article 50, keeping the mandate of Article 50, we have to talk about that the role of executive magistrate exist until the function of judicial magistrate starts. For an example, executive magistrate का काम क्या होता है? The main function of executive magistrate is to prevent the society from the offense. Offense का ना होने देना, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रखना, सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बनाना. आइडियल सोसाइटी मीन्स जहाँ पे सब कुछ सही है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, बिल्कुल ऑफेंस नहीं हो रहे हैं. तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम होता है. प्रिवेंटिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना, ऐसे स्टेप्स लेना जो कि ऑफेंस को ना होना, सोसाइटी को प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना. तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो रोल होता है वो प्री ऑफेंस होता है. बट वंस ऑफेंस is committed, the role of judicial magistrate starts.
offense committed. Here, the role of judicial magistrate comes into picture when the offense has been committed. बट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम एग्जीक्यूट करना होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके और ऑफेंस ना होने दें. तो इन BNSS दे बोथ हैव बीन डेल्ट ब्यूटिफुली. तो व्हाट आई एम प्लानिंग दैट फर्स्ट वी हैव टू सी कि ऑफेंस तो होगा, ऑफेंस से होने से पहले जो ऑफेंस ना होने के लिए कोशिश करते हैं कि ऑफेंस ना हो, तो पहले उनकी बात करनी चाहिए. तो ऑफेंस हो जाएगी, तो ऑफेंस के बाद जिनका फंक्शन, जिनका रोल स्टार्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वी विल टॉक अबाउट देम. तो आई थिंक फर्स्ट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स क्या होती हैं, उनके रोल क्या होते हैं, ये हम पहले डील करेंगे. देन वी विल गो टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट. नाउ फॉलोइंग माई वर्ड्स, लेट अस गो विद द powers of executive magistrate. The very first power is the binding down power. Binding down power. Binding down power, what do I mean by binding down power? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे पर्सन से सिक्योरिटी इसमें लेता है, प्रॉमिस करवाता है इन वेरी लेमन लैंग्वेज कि अब आप ऐसा काम नहीं करेंगे, कैसा काम जिससे ऑफेंस हो सके. आपको बाइंड डाउन करता हूँ, आपको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, आपको मैं ऑब्लिगेट करता हूँ कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे पीस डिस्टर्ब हो, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस की वाइब आ सके, ऑफेंस हो सके. आप ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. उसके लिए मैं किसी पर्सन से सिक्योरिटी लेता हूँ और उसको बाइंड डाउन करता हूँ. इट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग डाउन पावर, विच इज़ गिवन in section 126 to 143 ऑफ BNSS. इसमें सिक्योरिटी लेता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन से जो कि ऐसा रीजनेबली एप्रीहेंडेड है कि ही कैन कमिट सम ऑफेंस. तो उससे हम ऑफेंस होने तक का वेट ही क्यों किया जाए. अगर वो रीजनेबली सस्पेक्टेड है तो क्यों ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे सिक्योरिटी ले ले कि आप ऑफेंस नहीं करोगे. तो ऑफेंस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जा रही है. मोर ओवर ही कैन टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सम हैबिचुअल ऑफेंडर. हो सकता है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, नेक्स्ट टाइम भी वो ऑफेंस करेगा, सोसाइटी डिस्टर्ब करेगा, तो क्यों ना उससे आज ही मैं सिक्योरिटी ले लूँ. ही कैन टेक सिक्योरिटी फॉर maintaining good behavior and peace in society. So we will see all these sections. The second power comes by the virtue of the Police Act 1861. Police Act 1861. पुलिस एक्ट 1861 क्या कहता है कि इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु इज़ द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. It is said that district magistrate is the in charge of the law and order of district. So when I say magistrate, I would request you all that I will not be able to write each and every word. So it would be better for you to write down each and every word, the maximum things what I'm teaching in your notebook. So when I say district magistrate, that as far as I'm using the word magistrate, so here magistrate means that he is responsible to maintain law and order only. जब तक मैं मैजिस्ट्रेट बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तब तक उसका काम, उसका रोल यही होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे सोसाइटी में और कोई भी काम ना करे. सो दिस इज द ड्यूटी बाय वर्च्यू ऑफ पुलिस एक्ट 1861. बट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट होने के साथ साथ वह एक काम और भी करता है. वो हमने सुना होगा कि हम लोग जानते होंगे कि उसको हम लोग कलेक्टर भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सो जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है
या फिर ऐसा कहना चाहिए कि जो एक पर्सन होता है वो दोनों होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है सोसाइटी में, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन जब द सेम पर्सन, डीएम ओनली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली, कलेक्ट्स रेवेन्यू, लगान कलेक्ट करता है, तब वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ वह रेवेन्यू कोर्ट भी रन करता है, रेवेन्यू कोर्ट। सो व्हेन ही रन्स रेवेन्यू कोर्ट, ही एक्ट्स लाइक अ जज। यस, ही एक्ट्स लाइक अ जज। उसके भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, बिल्डिंग एंड ऑल वैसी ही होती है जैसे एक जेएम या मजिस्ट्रेट की होती है, जुडिशल मजिस्ट्रेट की। तो वह एक जज का रोल प्ले करता है व्हेन ही रन्स अ रेवेन्यू कोर्ट under the domain of district collector. So ideally, we ought to be speaking district magistrate and district collector. The correct nomenclature should be district magistrate and district collector. When he is district magistrate, he is maintaining law and order. उसका काम क्या है? डंडा मारने वाला पावर, डंडा मारने का काम कह सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर, डंडा मारना। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 148 to 151, we will see in our BNSS, ये डील करता है 148 से 151 इन आर BNSS। सो दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इसमें क्या करता है? 148 टू 151, इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर मिली है कि आप जो भी असेंबली है, जो असेंबल्ड लोग हैं, उनको डिस्पर्स कर सकें, जिनको बोलते हैं तितर बितर करने का पावर, डंडा मारने वाला पावर। तो तितर बितर करना असेंबली को, डिस्पर्स करना असेंबली को, चाहे वो सिविल फोर्स के साथ हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्स के साथ हो, तो असेंबली को डिस्पर्स करना। दिस इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दो द पर्सन इज सेम, बट द डोमेन ऑफ वर्क इज डिफरेंट। when he is collecting lagan revenue, he is called district collector, but when the same person comes on ground and maintain law and order, डंडा मारने वाला पावर, डंडा मारने का काम, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस डोमेन ऑफ वर्क को, विच इज जो कि हमारा BNSS इसी से डील करता है 148 टू 151। नाउ द थर्ड इज पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस which is also given in chapter 11 part B, पब्लिक न्यूसेंस की पावर। पब्लिक न्यूसेंस को हटाना, जो कि डील करता है 152 152 162 152 टू 162, पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करने की पावर, जो कि अब ये डोमेन है अगेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ जज, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू गो और वो देखे कि कहाँ पे गंदगी फैली हुई है, कहाँ पे गंदगी नहीं फैली हुई है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ जेएम टू डू लाइक दिस, टू गो एंड एक्ट फॉर दिस। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही डोमेन है कि पब्लिक न्यूसेंस की भी पावर उन्हीं के हाथ में है। सो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। द फोर्थ पावर इज अर्स्टवाइल 144 जिसको बोलते थे, 144 CRPC, जो कि now we have in the form of 163 BNSS। सो BNSS 163, जिसको हम लोग बोलते थे कि धारा 144 लग गई है यहाँ पे, मतलब कर्फ्यू लग गया है। तो BNSS में वी हैव इन द फॉर्म ऑफ 163, सेक्शन 163, which talks about the executive magistrate can pass an order ex parte without listening the other party। या नेचुरल जस्टिस के अपोज में है, बट again it is the scenario which has uh, yeah, we can say that it is a concept which is opposing the natural justice. It is not in consonance with the demand of natural justice, but it is the case, it is the scenario which is arising out of necessity, out of urgency। So in urgent cases एक्स पार्टी ऑर्डर पास करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कर्फ्यू लगानी पड़ती है विदाउट लिसनिंग द अदर पार्टी, अदर पार्टी की राइट्स
छीन ली जाती है, यू कैन सी दैट फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली ऑफ आर्टिकल 19 कि आप बाहर नहीं निकल सकते, फालतू में कहीं असेंबल नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 बिना आपसे पूछे, बिना आपको हियर किए एक्सपायरी ऑर्डर पास कर दिया जाता है, विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। नाउ द लास्ट executive power of executive magistrate, the last the last power of executive magistrate is the power to prevent the conflict which is concerning to immovable property। कोई immovable प्रॉपर्टी है, उसके कंसर्न में, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाले हैं तो उसको प्रिवेंट करना, which is dealt under 164 to 172 of BNSS. We are going to see each and every section in detail in our further classes. So in mains, it is a often asked question in mains that what are the powers of executive magistrate, how the executive magistrate prevents the offense from society, how the it is a pet question of means that it is very often it has been asked that how can an executive magistrate use his power, yeah, what are the powers, what are the, it is a question of means that what are the power of executive magistrate as far as protecting the society from the offense. So we have to deal with all these five powers of the executive magistrate. नाउ ये 5 केस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 केसेस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का नीड कहीं नहीं पड़ता बीएनएसएस में, कहीं बात भी नहीं होती है, कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 अ बिट ऑफ पिंस जगह ऐसी हैं जहाँ पे नीड पड़ता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ़ वी फॉलो द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 22 और सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस, जो कि बात करता है कि अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। बट व्हाट इफ अरेस्ट किया हुआ पर्सन किसी ऐसी जगह पे अरेस्ट हुआ है जहाँ से 24 आवर्स में, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, 24 आवर्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया ही नहीं जा सकता। In that case, there is a provision in BNSS in section 187 which says that it can be produced, the accused can, the arrested person can be produced to the executive magistrate also. So this is again the case of the out of necessity. It has been provisioned that the arrested person can be produced in front of the executive magistrate, which is in section 187. एक जगह और है कि जब डेड बॉडी पाई जाती है, तो जब डेड बॉडी पाई गई मतलब कि ऑफेंस हो गया, तो उसका जब डेड बॉडी पाई जाती है और उसकी डेथ हुई होती है किसी नेचुरल कॉज की वजह से, तो वहाँ पे इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की जाती है, वो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही करता है। इन 5-6 जगह के अलावा, इन 5-6 प्लेसेस के अलावा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल कहीं भी नहीं है। अब रोल स्टार्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जब ऑफेंस हो जाता है। एक एस्पेक्ट है मेंटेनेंस का, आई शुड बी डिस्कसिंग अबाउट मेंटेनेंस विच इज़ अंडर सेक्शन 144 टू 147 ऑफ मेंटेनेंस। बेसिकली मेंटेनेंस इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड domain of criminal procedure, it is a civil case, but it has been graduated to the offense, keeping the urgency of those 3 people who are being maintained under 144. Who are those 3 people who are being maintained under this section of maintenance? The wife, children and old people. तो बीएनएसएस में 3 लोगों को मेंटेनेंस मिलती है, वाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि अगर इनको मेंटेन नहीं किया गया, वी नो डैट द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर गोज फास्टर दैन दैट ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मेंटेनेंस की जो प्रोविज़न है, वो सीआरपीसी या बीएनएसएस में इसीलिए रखे गए हैं कि इनकी जो प्रोसीडिंग है, इनकी जो हियरिंग्स है, इनके जो केस है, वो जल्दी से जल्दी निपटाए जा सकें, और जिनको वाइफ, चिल्ड्रन या ओल्ड पीपल को मेंटेनेंस मिलना है, वो उनको मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी
प्रोवाइड किया जा सके। अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, या वो किसी ऐसे इलीगल एक्ट के शिकार हो जाएं जो उनको नहीं करना चाहिए, या मेंटेनेंस ना होने की वजह से, मेंटेनेंस ना पाने की वजह से उनको किसी इलीगल एक्ट में वो चोर और में वो चोरी उरी में जा सकते हैं। वो चोरी करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको मेंटेनेंस टाइम पे नहीं मिला तो। आखिर उनको जीने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इट वाज आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कि दे put the concept of maintenance in BNSS for the faster or speedy proceeding to speed up the wind up of the cases related to maintenance. Now, if I talk about when the concept of or the role or the function of judiciary starts per se, जब ऑफेंस हो जाता है, ऑफेंस कमिट हो गया, जब ऑफेंस कमिट होता है तो वी हैव स्टडी दैट ऑफेंस कमिट्स नॉट अगेंस्ट ओनली एन एक्यूज बट ऑल्सो इट अफेक्ट्स द सोसाइटी, इट अफेक्ट्स द वर्ल्ड एट लार्ज। तो इसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तो वी रीड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सो एंड सो। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो वी रीड स्टेट ऑफ यूपी सो एंड सो। सो ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होता है अगेंस्ट द स्टेट, नॉट ओनली अगेंस्ट एन एक्यूज। ऑफेंस कमिट होने के बाद जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो एफआईआर लिखवाता है, उसको इन्फॉर्मेंट बोलते हैं। उसका बस इतना ही काम होता है कि वो जाकर के पुलिस स्टेशन में, जो कि एक स्टेट का सबऑर्डिनेट है, स्टेट की एंटिटी है, पुलिस सिस्टम, पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। वो जाता है किसी कॉग्निजेबल केस में ही, वी विल रीड इन फर्दर दैट द इन्फॉर्मेंट कैन अप्रोच द पुलिस स्टेशन टू लॉज एन एफआईआर इन द केसेस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस ओनली। जाता है एफआईआर लिखवाता है, एफआईआर लिखवाने के बाद उसको एफआईआर की कॉपी दी जाती है, साइन करता है, बस चला आता है। उसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना है। नाउ इट इज़ द डोमेन ऑफ द स्टेट हु इज़ गोइंग टू डू ईच एंड एवरी टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। स्टेट कलेक्ट्स एविडेंस बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब स्टेट मतलब कि पुलिस, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कलेक्ट करती है एविडेंस। द प्रोसिक्यूटर फाइट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड। तो इन्फॉर्मेंट को या जो एक्यूज्ड है उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, अनलाइक द डिफेंडेड इन सीपीसी वी हैव डेल्ट इन द। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ ऑफेंस, nature of offense nature of offense can be divided into two parts: cognizable and non-cognizable. Cognizable offenses are those offenses in which the police, without taking permission or without taking warrant of the magistrate, can go directly arrest and investigate any case. तो कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं? जो सीरियस केसेस होते हैं, जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिनमें हम मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना, मजिस्ट्रेट से वारंट लेना, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस मच डिले, तब तक हो सकता है एक्यूज भाग जाए। तो in this it is the out of necessity again that the police should not be taking time to approach magistrate and delay in the procedure which are be taking warrant. So the police has to approach the accused, arrest the accused, arrest the accused and investigate the case without warrant. Whereas in the case of non-cognizable, it is which is of less serious, it is less serious in nature. In this, the police has to take warrant before arresting or investigating any non-cognizable case. So, तो बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन एक्चुअल वही हैं जो पहले सिविल केस थे, उनको ग्रेजुएट करके ऑफेंस की कैटेगरी में रख दिया गया। तो that is the only reason why we have the concept of compoundable. In BNSS, there is a provision, there is a section of section 359 which talks about the compounding of cases. Um, there is a provision, Article 315, Section 359 in BNSS, which deals with the list
विच कैन बी कंपाउंडेड बिटवीन द पार्टीज। अब ये कंपाउंड क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि ये लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस होंगे तभी तो। कॉग्निजेबल में मतलब सीरियस केसेस है कि रेप, मर्डर, इट कैन नॉट बी कंपाउंडेड बिटवीन द पार्टीज। वाई? Yes, it is against the state. No doubt, non-cognizable case is also against the state, but it is in serious nature. It is of serious, less serious nature. So in this, the state can afford giving the opportunity to the parties that if both of you want, you can compound the cases. तो सेक्शन 359 में लिखे हुए उन्हीं ऑफेंसेस पे कंपाउंड किया जा सकता है, उन्हीं केसेस को कंपाउंड किया जा सकता है जो सेक्शन 359 में है, और वो लेस सीरियस के नेचर के हैं। If we go to section 359, if we have a look, we will find two parts. 359 359 क्लॉज वन जो होगा 359(1) ये बात करता है कि कोर्ट की परमिशन के बगैर, कोर्ट से बिना पूछे हम पहले कंपाउंड कर लेंगे, फिर जाकर के कोर्ट को या जज साहब को हम बोल देंगे कि सर, जज साहब हम लोग कंपाउंड कर लिए हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कि जैसे कि हम बोल सकते हैं डिक्लेरेटरी टाइप होता है कि बस हम लोग कर चुके हैं, हम लोग कंपाउंड कर चुके हैं, बस आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए दैट द केस हैज़ बीन कंपाउंडेड, और जज साहब साइन कर देंगे, दैट विल बी फाइनलाइज्ड। वेयर एज सेक्शन 359 का पार्ट 2 या क्लॉज 2 ये कहता है नीड ऑफ प्रायर नीड ऑफ कोर्ट, प्रायर नीड ऑफ जज बिफोर कंपाउंडिंग एनी केसेस बिटवीन द पार्टी। तो जो सेकेंड क्लॉज है इसमें कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है, वेयर एज इन द फर्स्ट वन कोर्ट की परमिशन की नीड नहीं होती है। As I said that an informant can approach to police only with regards to cognizable cases। मतलब कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने, द पुलिस विल entertain the accused only when he has come up with the cognizable case। जो ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं उन्हीं को एंटरटेन करेगा, उन्हीं के बारे में सिर्फ FIR लॉन्च करेगा, और जो नॉन कॉग्निजेबल केस है वो पुलिस स्टेशन ना जा करके उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा डायरेक्टली और कंप्लेंट देना पड़ेगा वहाँ पे। सो व्हेन द इन्फॉर्मेंट come up with cognizable cases, then only he can lodge an FIR, then only he can approach to police station to lodge an FIR। Police will entertain him to lodge an FIR only then when he has come up with the cognizable case। But when the informant has come up with the non-cognizable case, non-cognizable मतलब कि less serious nature के, then he cannot go to police station but he has to go to the magistrate directly and complain the case। उसको बोलते हैं complaint। So when he complains the case, he becomes complainant। Whereas पुलिस स्टेशन वो तभी जा सकता है जब वो कॉग्निजेबल केस का वो विक्टिम हो, कॉग्निजेबल केस का वो इन्फॉर्मेंट हो। बट व्हाट इफ एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कॉग्निजेबल भी हो और नॉन कॉग्निजेबल भी हो, मतलब कि एक ऐसा केस जो सीरियस टाइप का भी है लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट नॉन सीरियसनेस का भी है। फॉर एन एग्जांपल कि एक ऐसा केस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अपेंडेड विद द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल मिक्स होते हैं, देन इट बिकम्स कॉग्निजेबल। तो इन सच सिनेरियो द इन्फॉर्मेंट इज वेल eligible to go police station and lodge an FIR। The police cannot deny and the police will lodge an FIR for the offense। तो ये cognizable plus non cognizable mix up and makes a cognizable offense which is very much eligible to lodge an FIR। now ये cognizable केस और नॉन cognizable केस ये पता कैसे चलता है? हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सा केस cognizable है, कौन सा केस नॉन cognizable है? So for this we have to go to our schedule 1 of BNSS। Let us go to schedule 1 of BNSS। Now when we come to the first schedule of BNSS, इसमें we can see that जो फर्स्ट पार्ट है जो कि डील करता है ऑफेंसेस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इट डील्स विद दोज ऑफेंसेस विच आर गिवन इन BNSS ओ BNS।
आईपीसी, बीएनएस में जितने ऑफेंसेस हैं वो सारे ऑफेंसेस यहाँ पे इंडिविजुअली डील किए गए हैं। हर ऑफेंसेस के बारे में ये बताया गया है कि ऑफेंस का पनिशमेंट क्या होगा, ऑफेंस कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेनेबल है और नॉन बेलेबल है, या फिर ऑफेंस इस कोर्ट से ट्राइबल है, मीनिंग टू से दैट विच कोर्ट इज एलिजिबल टू ट्राई एन ऑफेंस। तो जो जो शेड्यूल वन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ interview, which it is very part of, it is very much important as far as judiciary is concerned. The schedule 1 should be rote learned to every aspirant, I would say. It is very much important. So we have to understand that schedule 1 talks about only four things. It can also be a part of prelims question that चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से तीन ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो शेड्यूल वन से रिलेटेड है, बट वन थिंग विल नॉट बी रिलेटेड टू शेड्यूल वन, सो दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड mark the answer. Schedule 1 talks about four things. The first thing, it talks about the punishment. The second, it talks about the cognizability, uh, whether it is cognizable or not non-cognizable. It talks about bailable or non-bailable. It talks about the court, which court is eligible to try an offense. But अब हम अगर यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट पार्ट है जो कि डील करता है सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस के साथ जो बीएनएस में लिखे हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता में लिखे हुए हैं। लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस शेड्यूल। Yes, when we come to the second part, it says the classification of offenses against other laws. What do I mean against other laws? ये other laws क्या है? Other laws मतलब कि जो BNS में offenses नहीं हैं. Here other laws means to say that offenses which are in minor laws, not in BNS. BNS में दिए हुए सारे offenses के बारे में डील किया जा चुका है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस शेड्यूल। अब इस पार्ट में ये कह रहा है कि जो माइनर लॉज हैं, ये जो स्पेशल लॉ हैं, ये जो लोकल लॉ हैं, उनमें अगर ऑफेंसेस दिए हुए हैं, उस ऑफेंस के पनिशमेंट के बेस पे यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है इन द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डेल्ट विद द ऑफेंसेस ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट शेड्यूल इज डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। सो दिस अदर लॉ मीन्स माइनर लॉज, स्पेशल लॉज और लोकल लॉज। नाउ अगेन हेयर ऑफेंस के बारे में बताया गया है, यहाँ पे पनिशमेंट भी लिखी गई है, प्लस कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बारे में, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और कौन सी कोड ट्राई करेंगे, ट्राइबल बाय विच कोड, दिस हैज़ बीन गिवन। वी विल रीड मोर अबाउट दिस शेड्यूल। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दैट। फिर कंपाउंडेबिलिटी कहाँ दिया गया, कंपाउंडेबल है कि नहीं है, ये शेड्यूल वन में नहीं पता चलेगा। अब कंपाउंडेबल है कोई केस या कंपाउंडेबल नहीं है, this we cannot know with the help of the first schedule. For this we have to go section 359 only, which I discussed earlier. Section 359 gives you a list which says that what offenses are compoundable and what offenses are non-compoundable between the parties. So it is a question of prelims or mains and more of interview that how will you recognize or how will you acknowledge that which offense is compoundable or not. So you should not be answering that it can be known using schedule 1. No, schedule 1 में ऐसा नहीं दिया हुआ है। schedule 1 में it talks about only four things. It talks about only punishment, it talks about the whether it is cognizable or non-cognizable, it talks about bailable or non-bailable, and lastly it talks about that by which court it is triable. But as far as compoundability of an offense is concerned, it cannot be known using schedule 1. It cannot be traced out using schedule 1 of BNSS. For compoundability of any case, we have to go
to section 359 of BNSS. Now, let us delve deeper into the schedule. When we talk about the second part, the offenses which are residual to BNS, मीन्स जो BNS में ऑफेंसेस नहीं है, जो माइनर लॉज में है, स्पेशल लॉ में है, लोकल लॉ में है, अगर उनकी बात किया जाए तो दिस सेकेंड पार्ट डील्स विद दोज ऑफेंसेस. Let us read the first. Let us read the first part. It says that if punishable with death, any offense punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for more than 7 years. For more than 7 years, it means that 7 years is not included here. More than 7 years means it starts with 8 years. I think it starts with 8 years. 7 year यहाँ पे नहीं included है. तो any offense of minor law, special law or local law, which is punishable for more than 7 years, not 7 years. So that offense will be cognizable and that will be non-bailable and will be dealt by the court of session. That will be dealt by the court of session. Second, if punishable with imprisonment for 3 years and upwards but not more than 7 years, means if punishable with imprisonment for 3 years, means 3 years is included here. So 3, 4, 5, 6 and 7. So 3 to 7, 3 and 7 are included here. So such offences will be cognizable, non-bailable, and it will be triable by the magistrate of the first class. The magistrate of the first class will be dealing with the offences which are punishable for 7 years. Mark this point from prelims point of view. वैसे ऑफेंसेस जो 3 और 7 ईयर्स की पनिशबल हैं, मतलब कि 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड. इफ पनिशबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years और विथ फाइन ओनली फॉर लेस देन 3 years, मीन्स हेयर 3 years इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 3 years तो इंक्लूड किया जा चुका है इन दिस सेकेंड पॉइंट. जहाँ पे 3 to 7 years था वो जेम फर्स्ट क्लास ट्राई कर रहा है. बट इन द थर्ड पॉइंट 3 years से कम वाले ऑफेंसेस और या फाइन से जो पनिशेबल है, वैसे ऑफेंसेस विल बी नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड इट विल बी ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट. नाउ हियर एनी मैजिस्ट्रेट मीन्स क्लास सेकेंड मैजिस्ट्रेट ऑल्सो, जेम सेकेंड क्लास, दे कैन ऑल्सो ट्राई. नो, अब जैसे कि नॉन कॉग्निजेबल है थर्ड वाले केस में, वैसे ऑफेंसेस माइनर लॉज, स्पेशल लॉ या लोकल लॉज के वैसे ऑफेंसेस जो 3 years से कम पनिशमेंट है. जब मैं बोलता हूँ 3 years से कम पनिशमेंट पनिशेबल है, इट मीन्स दैट 3 years इज नॉट इंक्लूडेड हियर. 3 years इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड पॉइंट. जब 3 years से कम पनिशेबल है और ये नॉन कॉग्निजेबल है, इट मीन्स FIR लॉज नहीं हो सकती. FIR कैन नॉट बी लॉज्ड. Complaint has to be made to the magistrate for this kind of offenses. But one more important thing, if we have a look in the first part, why this first part is such a long part, why this first part of the schedule is such a long stressed part, जबकि सेकेंड पार्ट को वाइंड अप कर दिया गया 3 या 4 पॉइंट में. बट फर्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं किया गया. फर्स्ट पार्ट देखिए कई पेजेस के पार्ट हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल. हाउ मेनी पेजेस आर यूज्ड टू डील विद द ऑफेंसेस डीलिंग इन BNS. ऐसा इसलिए किया गया है, BNS के हर एक ऑफेंस को दिमाग में रख करके BNS के हर एक ऑफेंस को. नो, इफ यू हैव अ लुक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस शेड्यूल, it has been dealt in 3 to 4 lines, in 3 to 4 points. Unlike the offenses of BNS, first part of this schedule. First part of this schedule is such a long, stressed part. It has used many pages to deal with the offenses of BNS. Why is it so? BNS के हर एक ऑफेंस को ट्रीट किया गया है सेपरेटली, मतलब कि हर एक ऑफेंस को सेपरेटली ट्रीट किया गया है. वहाँ पे यूनिफॉर्म जैसा कुछ नहीं, वहाँ पे एक ऐसा ब्लैंकेट फॉर्मूला कुछ नहीं ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन द पार्ट सेकेंड विथ रिगार्ड्स टू माइनर लॉज और स्पेशल और लोकल लॉज. यहाँ पे यूनिफॉर्मली बोल दिया गया, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रूल बना दिया है कि जो 7 साल से ऊपर के ऑफेंसेज हैं वो कॉग्निजेबल हो गए, नॉन बेलेबल हो गए, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा. जो 3 years, 4 years, 5, 6, 7 years के हैं वो GM फर्स्ट क्लास, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल. और जो 3 years के नीचे वाले हैं वो नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और जेम सेकेंड क्लास.
मतलब एक यूनिफॉर्म रूल ले डाउन कर दिया गया विजा भी माइनर लॉस, स्पेशल और लोकल लॉ। अनलाइक बीएनएस, बीएनएस में हर एक ऑफेंसेस को सेपरेटली डील किया गया है। क्यों? क्योंकि उस ऑफेंसेस को दिमाग में रख करके उसके इम्पैक्ट को सोसाइटी, जो उसके इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, उसको दिमाग में रख करके हर एक ऑफेंसेस को सेपरेटली डील किया गया है। इफ़ वी लुक द केस ऑफ बाइगेमी, it is an offense. If we look the offense of rape, it is an offense. Offense, रेप एक ऑफेंस है, वो कमिट होता है सोसाइटी में, एक बाइगेमी कमिट होती है सोसाइटी में। दोनों का जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो सेम नहीं हो सकता। कहीं थेफ्ट कमिट हुआ है, कहीं मर्डर कमिट हुआ है, कहीं थेफ्ट कमिट हुआ, कहीं रेप कमिट हुआ। दोनों ऑफेंस है, दोनों बीएनएस के ऑफेंस है, बट दोनों की जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है ऑन सोसाइटी इट इज़ वेरी मच डिफरेंट। तो इट विल बी इनजस्टिस टू डील एंड टू ले डाउन अ यूनिफॉर्म फार्मूला कि इससे ज़्यादा पनिशेबल होने वाले ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और मजिस्ट्रेट ही ट्राई करेगा। ऐसे नहीं किया जा सकता। बीएनएस की हर ऑफेंस को दिमाग में रख करके उनकी इम्पैक्ट क्या पड़ रही है सोसाइटी पे उसको दिमाग में रख करके सेपरेटली डील किया गया, तभी बीएनएस वाली जो पार्ट वन है ऑफ द शेड्यूल इज सच अ लॉन्ग पार्ट। सो this is the only reason, and this is often asked in interview that uh, why such why the offenses which are dealt in schedule part 1 are so long. uh, तो उनकी इम्पैक्ट को दिमाग, उनकी हर ऑफेंस की होने वाली इम्पैक्ट सोसाइटी पे, इसको दिमाग में रख करके दो तीन चीज़ें डिसाइड की गई हैं। अगर वो कॉग्निजेबल हैं कि नहीं कॉग्निजेबल हैं, क्या वो बेलेबल होंगे कि नहीं बेलेबल होंगे। तो बेलेबिलिटी एंड कॉग्निजेबिलिटी ऑफ एन ऑफेंस is decided on the benchmark of the degree of impact on the society। वो सोसाइटी के लोगों के दिमाग में कितना डर डालती है, सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट करती है, पब्लिक साइकी को कितना डिस्टर्ब करती है। जितना ज़्यादा पब्लिक साइकी को डिस्टर्ब करे ऑफेंस, वो ऑफेंस उतना ही ज़्यादा सीरियस और उतनी ज़्यादा कॉग्निजेबल होना और नॉन बेलेबल होना। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द first part and the second part of schedule 1 of BNSS. So I think we should stop here. Now we will move to the next second lecture of BSA. So I would request you to revise this schedule, as this schedule is very much important, as हम लोग ने realize भी किया होगा कि how important this schedule is. So we cannot take this schedule lightly, because many questions you are going to face in your interview and prelims, the very first stage, with regards to offense. I would suggest you that to rote learn each and every offense का cognizability, bailability and all. कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सी बेलेबल है, कौन सी नॉन बेलेबल है। सो इफ़ नॉट पॉसिबल विथ रिगार्ड्स टू ऑल ऑफेंसेस, जस्ट गो विद दी